So first we will learn law of indices. So let's start off with this. So what are the laws of indices? The first is, we have to remember this. If we multiply a into m and a into n, so this will be how much? A plus m plus n. If suppose we have a raised to 5 into a raised to 3, we will write it as a raised to 5 plus 3. We can simply write it as a raised to 8. Okay? लिखते जाओ, लिखते जाओ. सपोज a raised to m, इसको हम लोग n के साथ रेस कर रहे पावर से, तो ये हो जाएगा a raised to m into m into n. वैसे ही यहाँ पे सपोज a raised to n है, तो ये हो जाएगा a raised to n into m हो जाएगा. कैमरा ऑन करना सबको. तो ये हम लोग का सबसे बेसिक वाला पार्ट है. वी आर ऑलरेडी कवर्ड दिस. जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस. सपोज a raised to 5 raised to 3 करना है, so this will be what? A raised to 15. Same way, if we have to multiply a raised to 3 the whole raised to 5, so this will also be a into 3 into 5. This will be 3 5s. Just remember these two rules. These two are very important, especially for this chapter. You let me know once you're done. So which chapter is this? This is third chapter, maths. Third Third chapter. Sure. Now we'll write multiplication of fractions. So write the heading as multiplication of fractions. So in multiplication of fractions, how do you multiply two fractions? So suppose I have 1 upon 2 into 1 upon 3. I'll directly multiply 1 into 1, that will be 1. And then 2 into 3 will be what? 6. Okay. In multiplication, there is no rule of LCM. Yep. Directly multiply numerator with numerator, denominator with denominator. Suppose here there is 2 with 7. हाँ, नरेंद्र बताओ क्या होगा इसका आंसर? माइक ऑन करो. हेलो हाँ बोलो, क्या होगा इसका आंसर? सर, आपकी आवाज कट हो रही थी. क्या होगा आप बताओ ना. चलो मेरा आवाज कट हो रहा, आप बता दो. 2 into ये क्या होएगा? क्या होएगा? 6. हाँ, 7 into 5 कितना होता है? हेलो 7 into 5 क्या होएगा? इधर आएगा 30. वैसे 3 upon 7 into 2 upon 8. ये ट्राई करना. अलीना बताओ क्या रहेगा आंसर? अपॉन 6 अपॉन कितना आएगा? 56 आएगा. तो ये बेसिक चीजें मालूम रहना चाहिए. Now I'll go to the main topic of this chapter. Okay, so the main topic of this chapter is, so just write the heading. Yeah, just a second, Sanvi, just continue what you're writing. Okay, next heading, write down root and polynomial. Okay, so in root and polynomial, what you have to do is, it's very simple. In root and polynomial, suppose I have x raised to, suppose say a upon b. Okay, suppose I have x raised to a upon b. So this a is called, oh sorry, root and power, write down. It's root and power. So this a, or you can say the numerator
the numerator is always considered as the power. The denominator is always called as the root. Okay, so suppose if you say x raised to 2 upon 3. So can you tell me what the power will be? 2. 2. And what will be the root? 3. 3. Okay, as simple as this. If suppose I have told you to do this x raised to 2 upon 3 and इसका हमें क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले इसको जरा मल्टीप्लाई करो लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करके, क्या होएगा? Sir, x raised to 2 upon 3 into 2. हाँ, तो 2 upon 3 into 2 कितना होएगा? 2 2s होएगा, 2 2s 4 होएगा अपॉन 3 होएगा। तो यहाँ पे कितना रहेगा? पावर विल बी 4 and the root will be 3. Sir, हाँ बोलो। sir, actually I joined late because of net issue. So I only saw this root and power. I didn't see what you explained. कुछ नहीं समझा आप क्या बोले, आप इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पेज का जरा स्क्रीनशॉट ले लेना। सर मैं अभी ज्वाइन हुई, ये अभी आप रूट एंड पावर सिखाए थे तभी ज्वाइन। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये हाँ ये मतलब कुछ उसमें कुछ नहीं है, उसमें बस आपको ये याद रखना है कि जो न्यूमरेटर में रहेगा पावर रहेगा, डिनोमिनेटर में जो रहेगा रूट रहेगा। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, ये 2/3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, आपको डिनोमिनेटर में कोई नहीं ना, तो यहाँ पे क्या होएगा, इंटू 7 करना है। तो ये कितना होएगा, y रेस टू 2 7 कितना होएगा, 2 7 14 होएगा। 14। तो ये हम लोग का पावर रहने वाला है, ये हम लोग का। नेक्स्ट ये करना, z स्क्वायर का 1/3 करना है, ये जरा ट्राई करना। हाँ नरेंद्र, क्या रहेगा आंसर इसका? z रेस टू कितना रहेगा? हेलो नरेंद्र, क्या रहेगा आंसर? हाँ लेना, क्या रहेगा इसका आंसर, जरा बताओ। क्या रहेगा? ओके, तो यहाँ पे बता सकते हो क्या रहेगा आंसर इसका? Sir, 2 upon 3. 2 upon 3। वेरी गुड। तो दिस विल बी व्हाट, z इक्वल टू 2 अपॉन 3 रहेगा, जहां पे z क्या, 2 क्या रहेगा अपना? Sir, power. पावर, एंड 3 विल बी व्हाट? Root. नेक्स्ट ये करना, z 1/3 का 2 अपॉन 3 पावर करना है। सर ये ट्राई करो, कैमरा चालू करना नरेंद्र, कैमरा चालू रखो, नहीं तो मीटिंग के बाहर रहते रहोगे। कैमरा ऑन करना। क्या रहेगा इसका आंसर, जरा बताओ। सर 2 upon 3 z Z. वेरी गुड। 1 अपॉन 3 इंटू 1 इंटू 2 होने वाला है 2, 3 इंटू 3 होएगा 9। 9. ये रहने वाला है पावर, ये रहने वाला है। Power. Root. एक और एक करते, z रेस टू 1/7 एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। चलो नरेंद्र बताओ आंसर क्या रहेगा इसका? 5 क्या करोगे? 1 into 7 1 अपॉन 7 इंटू क्या करोगे? 2 क्या होएगा? 1
1 into 2 कितना होता है? 2. अपॉन क्या रहेगा? अपॉन क्या रहेगा? No. ऊपर क्या रहेगा? ऊपर तो 2 है, नीचे क्या है? 7 into 1 है ना, 7 होता है। पावर क्या है इसका? आप ही बताओ, पावर क्या है? 2.7. पावर क्या है इसका? पावर क्या है? 2. 2, पावर 2 है। रूट क्या है? 7. तो यहां तक एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। m रेस टू m का क्यूब, और इसको क्या करना है? 1/9 करना है। तो जरा ट्राई करो, m का क्यूब को 1/9 करना है। चलो अलीना बताओ क्या रहेगा आंसर? 3 into 1, हाँ 3 into 1 3 होएगा, अपॉन क्या होएगा? 9 होएगा। सो यहाँ पे पावर कितना है? 3. एंड रूट कितना है? 10. तो ये याद रखना, इसको आप क्या कर सकते हो? फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। 3 और 9 टेबल में आता है ना, तो 3 और 9 टेबल में आता है, मतलब इसको कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट इट एज 1/3 ऑल्सो। कैन इवन डू दिस वे, ये भी राइट है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, कीप इट 3/9। ठीक है, टेंशन मत लेना। अगर आपको ये समझ में आ रहा है 3 और 9 कैंसिल आउट हो रहा है तो 1/3 आएगा। यू कैन इवन डू दिस वे, गलत नहीं आएगा, दोनों का आंसर राइट है। ठीक है, यहां तक सब लोग क्लियर है? Yes. ओके, नाउ हम लोग सीखेंगे, जस्ट लिखना हाउ टू राइट, नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाउ टू राइट रूट एंड पावर। मतलब रूट एंड पावर को हम कैसे लिखते हैं, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई जस्ट टीच यू दैट। सपोज आई एम गिवन x रेज टू 2/3। तो ध्यान देना, सपोज यू आर गिवन x रेज टू 2/3, तो ये x को रूट के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? रूट के फॉर्मेट में यहां पे कौन आएगा? 3। स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या आएगा? x का स्क्वायर। एक और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज यू हैव टू राइट x रेज टू 7/3। तो x का रूट कौन है? यहां पे रूट कौन है x का? 3 3. है। एंड x का पावर क्या है? 7. 7. कैसे लिखते हैं? आई होप समझ में आया होगा। आई जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल। x रेज टू 5/4। तो रूट में कौन आएगा? 4. 4. एंड पावर में कौन आएगा? 5. लिखते रहो। आई गिव यू मोर एग्जांपल्स टू ट्राई। x रेज टू 7/15, fifth, x raised to 3/11, 6, m raised to 4/9, 7, 3 raised to 7/3, 8, 2 raised to 3/6, 9, 7 raised to 5/3, 10, 3 raised to -7/8, 11, So the 7th, 6th one is m, no? m, it is m. यहाँ पे it is 5, okay, ये वाला part is, and m raised to -3/8, next is 12, m raised to -1/6. Try one more. चलो फर्स्ट का आंसर सानवी बताओ क्या आएगा? Root आएगा 15, x/7. x raised to 7 आएगा। फिर नेक्स्ट ऋषिकेश।
raised to 3. नेक्स्ट श्रुति. Sir, root will be 9 and power will be 4. Square will be 4. ग्रेट. नेक्स्ट अलीना. नहीं अलीना ने रुको, अलीना ने दिया आंसर. हाँ ये बताओ. तो ये इमानुअल. Sir, 3 is the square and Where? 3 is the root. Sorry. 3 is the root and 7 is the and power. is the square. चलो नेक्स्ट. अली नरेंद्र बताओ. पहले नरेंद्र बताना. बोलो. रूट में कौन आएगा? रूट में 6, पावर में 3. पावर में 3. इसको आप रेड्यूस भी कर सकते हो. इसको आप 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो. तो इवन दिस इज राइट. यू कैन इवन डू दिस वे. तो इसमें रूट में क्या आएगा? अब देखो जब भी है ना नीचे सा 2 दिया रहता है ना, तो आप ये 2 लिखते नहीं हो, ऊपर ऐसा 2 लिखते नहीं हो. ये ध्यान देना. जब भी ना स्क्वायर रूट आता है ना, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो ये 2 को हम लोग कभी लिखते नहीं है. ये ध्यान देना. वी ओनली राइट इट फ्रॉम 3, 4, 5, 6. 2 को रूट के ऊपर वी डोंट राइट इट. ओके. यहाँ पे यू कैन इवन डू दिस वे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो. कैन ऑल्सो राइट इट एज कि 2 का पावर कितना है? 2 का पावर है 1. स्क्वायर रूट के ऊपर 2 कभी लिखते नहीं है. ये ध्यान देना, कभी भी 2 लिखते नहीं है. 2 के बाद के सारे नंबर्स चलेंगे. 3, 4, 5, 6 चल जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर, सॉरी रूट के ऊपर कभी 2 नहीं लिखते. तो नेक्स्ट अलीना. Root 3 power 5. 7 raised to 5. चलो अब नेक्स्ट श्रुति. Sir, root 8 3 raised to -7. ऐसा करना बराबर है क्या? पहले सोचो. नेगेटिव पावर है तो उसको कहाँ पे लेके जाओगे सबसे पहले? पता है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उसको कहाँ लेके जाते हैं? Denominator. डिनोमिनेटर में. तो ये क्या होएगा? अब बताओ. अभी इसको कैसे लिखोगे? 1 क्या आएगा? Root 8 and 3 raised to 7. वेरी गुड. रूट 8 आएगा एंड इट विल बी 3 raised to 7. ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल है लॉजिक इसका. पहले इसको पॉजिटिव करो. इवन व्हाट यू टोल्ड इज राइट है श्रुति. आपने जो बोला था ना पहले आंसर, इवन दैट इज राइट, बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल. ओके. चलो नेक्स्ट सानवी. Yes, sir. So, 1 upon m raised to minus No, plus that 3. minus will become plus. Okay, Upon that's why you are doing it. Yes, yes, sir. हाँ, फिर अभी बताओ. Is equal to 1 upon root 8 m raised to 8. 3, sorry, 3. चलो नेक्स्ट. ये बताओ इयान. Yes, sir. So, root is 6. First is what you have to do. You have to bring this down. If the negative power comes to the denominator, it becomes positive. अब next. Positive. Next करेगा. So 1 upon, sir, m raised to 1. M raised to 1 is m. और क्या रहेगा? And the root is 6. Root is 6. So what we'll do is we'll just try the sums from the table. So try these questions out. So I'll do first question for you. It's very simple. So the first question they are told is 5th root of 13. तो कैसे लिखोगे इसको? 13 को अंदर रूट में कौन आएगा? कौन आएगा? 5 यार. बहुत ही सिंपल है. वैसे करते रहो आगे का क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है.
स्क्वायर रूट बोलेगा तो मतलब क्या है, इसके ऊपर ऑफ कोर्स स्क्वायर का मतलब 2 रहता है, तो आप 2 कभी लिखते नहीं है, ये ध्यान देना। क्यूब रूट तो आपको पता है ना, क्यूब रूट का मतलब क्या है, यहाँ पे कितना आएगा, 3. 3 आएगा। इस बात का ध्यान देना, क्यूब रूट रहेगा तो 3 आएगा, स्क्वायर रूट आएगा तो ये एज इट इज आएगा। Sir, 2. वी डोंट राइट 2 ओवर द स्क्वायर रूट। Yes. चलो ऋषिकेश बताओ इसको कैसे लिखोगे? 6. किधर 6? No. बोलो किधर 6 लिखोगे? Sir, this side. Left side. Square root of 6 लिखोगे, okay, 6th square, okay, or you can write 6th root of 9. चलो नेक्स्ट नरेंद्र बताओ, ये वाला 8th root of 100, तो 100 को कहाँ पे लिखोगे, रूट के अंदर की रूट के बाहर? Sir, रूट के अंदर. हेलो इमानुअल, आप नरेंद्र हो क्या? हाय नरेंद्र बताओ, बोलो 100 को कहाँ लिखोगे? राइट हैंड साइड, रूट के अंदर लिखोगे, ठीक है, और रूट के ऊपर क्या लिखोगे? 8. 8। चलो नेक्स्ट अलीना, 6th क्वेश्चन। 30 को रूट के अंदर और 70 को रूट के वेरी गुड। चलो इसको जरा लिखना, तो मैं फर्स्ट वाला आपके लिए करता हूं। फर्स्ट वाला क्या रहेगा, इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग? 4th root of 81, 4th root of 81, तो वैसे 2 रहेगा तो हम लोग कैसे रीड करेंगे इसको, सब लोग बताओ, 2 रहेगा तो कैसे रीड करेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। 3 रहेगा तो बोलेंगे क्यूब रूट, क्यूब रूट. क्यूब, क्यूब रूट. ट्राई करना। चलो श्रुति बताओ कैसे रीड करोगे 49 1/2 को? तो कैसे रीड? सेकेंड रूट ऑफ 49, सेकेंड रूट नहीं, हम लोग बोलेंगे स्क्वायर रूट, अभी बोला था ना, अभी 2 रहता तो स्क्वायर रूट ऑफ square root of 49। चलो नेक्स्ट सानवी बताओ, थर्ड क्वेश्चन को कैसे लिखोगे? सर 5 रूट ऑफ 15, फिफ्थ रूट ऑफ 15। ओके नाउ Okay, sir. नेक्स्ट विल बी, ये बताओ अलीना, फोर्थ क्वेश्चन। नाइन्थ रूट ऑफ 512, वेरी गुड, 9th root of 512। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इयान। Sir, 19th root of 100. वेरी गुड, 19th root of 100। चलो नेक्स्ट नरेंद्र, 6th वाला। 7th root of 6. वेरी गुड, 7th root of, this completes our first exercise। ठीक है, यहां तक हो गया सबका लिख के? यस सर। चलो तो अभी हम लोग इसका सेकेंड पार्ट को जरा करेंगे। क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, इसको रीड ऐसा करते। अब देखो कैसे रीड करेंगे। पावर क्या है इसका? पावर इज 4, तो कैसे बोलेंगे? 4th पावर ऑफ, रूट क्या है यहाँ पे? रूट क्या है इधर? 5. 5। 5, 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45 आएगा। क्या बोला? 4th पावर ऑफ 5th रूट 5th root of 40. इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ द रूट फॉर्म। अब हम लोग रूट ऑफ द पावर फॉर्म करेंगे, तो ये कैसे रहेगा? पहले रूट क्या है इसका? रूट इज 5, तो कैसे लिखेंगे? 5.
fifth root fifth root of of fourth power power of 24 of 45. 45. Four. ठीक है, I'll write one more example for you ताकि आपको समझे. पावर ऑफ द रूट फॉर्म में पहले आप क्या लिखोगे? पावर. तो कैसे लिखोगे? 6 पावर ऑफ रूट क्या है यहाँ पे? 7 ऑफ 7th रूट ऑफ क्या आएगा? 81. रूट ऑफ द पावर में पहले आप क्या लिखोगे? रूट लिखोगे. तो ये क्या आएगा? 7th रूट ऑफ 6 पावर ऑफ 80. आई होप समझ में आ रहेगा. पावर ऑफ द रूट बोला तो पावर पहले रूट बाद में, रूट ऑफ द पावर रहेगा तो रूट पहले पावर बाद में. ठीक है, लास्ट दो जरा ट्राई करना. चलो ऋषिकेश बताओ फोर्थ क्वेश्चन का आंसर. Yes. Fourth power of 10 root of 100. Fourth power of Of 10 10 root root of 100. of 100. चलो वैसे ही सेकंड वाला अलीना रीड करो. क्या रहेगा? रूट ऑफ द पावर क्या रहेगा? 10th root of 4th power of 100. वेरी गुड. 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 100. चलो नेक्स्ट ये पढ़ो. श्रुति क्या रहेगा? Third power of 7th root of 21. थर्ड पावर को हम लोग कैसे लीड करते? क्यूब. Cube. क्यूब ऑफ Huh? 7th Seven. पावर, सॉरी 7th रूट, 7th रूट ऑफ 21. Of 21. चलो वैसे ही ये नेक्स्ट वाला पार्ट ये रीड करना. सानवी क्या रहेगा? Yes, sir. 7th root of cube of 21. 7th root of cube. 7th root of cube of. This is quite simple, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आई होप यहां तक लिख के हुआ रहेगा सबका. चलो अब हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट में, ये जरा लिखने का ट्राई करना नंबर फॉर्म में. फर्स्ट वाला मैं आपके लिए लिखता हूं. ये देखो 121 आपको लिखना है, नो डाउट अबाउट इट. फिफ्थ पावर बोला है, मतलब पावर हमेशा कहां पे आता है? न्यूमरेटर में. स्क्वायर रूट बोला है तो रूट मतलब कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर. समझ में आ रहा है? 121 का फिफ्थ पावर मतलब वो न्यूमरेटर में आएगा 5. स्क्वायर रूट का मतलब है 2. 2 कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर में, क्योंकि वो रूट है. चलो नेक्स्ट ये बताओ इयन, क्यूब रूट ऑफ 4th पावर ऑफ ये क्या रहेगा? Sir, 324 3/4. वेरी गुड. 324 with 3/4. चलो नेक्स्ट ऋषिकेश बताओ क्या रहेगा थर्ड का आंसर? 264 2/5. 2 will be power and 5 will be root. वेरी गुड. 2 will be power. चलो नेक्स्ट अलीना, फोर्थ क्वेश्चन. 3 raised to 6. See, it will be cube of cube root. तो क्यूब मतलब raised to 3 रहेगा, क्यूब रूट मतलब divide by 3 रहेगा. So this will be the answer. You can finally write it also as 3 raised to 1. Even this is right. 3 raised to 1 भी इसका करेक्ट है, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल आउट होके 1 बचेगा. आई होप यहाँ तक समझा रहेगा सबको. किसी को डाउट है इधर तक तो पूछ लेना. Okay. हम लोग लास्ट पार्ट. No, sir.
तो अभी यहाँ पे you have to have little bit knowledge. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? सब ये डायरेक्टली एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे, पहले चीज थोड़ा बहुत बेसिक्स हम लोग क्लियर करेंगे. चलो, तो फर्स्ट जस्ट हेडिंग डालो, क्यूब, पहले स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब, क्यूब रूट्स लिखना. स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स and cube, cube roots. The first thing what we will do is we'll learn about certain cubes जो आपको पता रहना चाहिए. At least say up till 15 आपको square and square roots पता रहना चाहिए अभी के लिए, 8th standard के लिए. 9th में you should make it to 25 and 10th में you should make it up till 30 to 50. ठीक है, रेंज आप बढ़ा लेना. तो just see this, how I'm writing, just pay attention. तो x स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर. स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? रूट ऑफ एक्स. क्यूब का मतलब क्या है? एक्स क्यूब. क्यूब रूट का मतलब क्या है? ओके, तो क्यूब और क्यूब रूट वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग बाद में करेंगे. ठीक है, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे ये वाला पार्ट. पहले हम लोग एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब वाला पार्ट करेंगे. तो 1 का स्क्वायर क्या रहने वाला है? 1 का क्यूब विल आल्सो बी 1. 2 का स्क्वायर क्या रहेगा? 2 into 2 विल बी 4. 2 into 2 into 2 कितना होएगा? 8. 3 का स्क्वायर क्या रहेगा? 9. 9 को और एक 3 से मल्टीप्लाई करो. 27. 27. Next is here you will write 4. 4 का स्क्वायर is 16. 64. 16. Next is 5. 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25. 25. 5 का क्यूब करोगे तो it will be 125. 6 का स्क्वायर is 36. और इसका क्यूब करोगे तो 216 आएगा. 7 का स्क्वायर करोगे तो 49. क्यूब करोगे तो आएगा 343. 8 का स्क्वायर is 64. 4 का अगर हम लोग क्यूब करोगे तो दिस विल बी 512. लिखते जाओ है. हेलो सानवी, लिखते रहो. फिर 9 का स्क्वायर करोगे तो 81. 9 का क्यूब करोगे तो 729. सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कॉलम बनाना है. रूट एक्स और क्यूब रूट एक्स बाद में करेंगे हम लोग. फिर 10 का स्क्वायर रहेगा 100 एंड क्यूब रहेगा 1000. ठीक है, तो क्यूब्स आप अभी के लिए फिलहाल तो बस 10 तक ही करना. ये 10 तक इज मोर देन सफिशिएंट याद करने अभी. मैं 10 के आगे का स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला पार्ट आई विल जस्ट कंटिन्यू इट अहेड. फिर 11 का स्क्वायर आएगा 121. दिस विल बी 121. नेक्स्ट इज 12 का स्क्वायर इज 144. 13 का स्क्वायर इज 169. 14 का स्क्वायर इज 196. 115 का स्क्वायर इज 225. 16 का स्क्वायर इज 256. 17 का स्क्वायर इज 289. 18 का स्क्वायर इज 324. 19 का स्क्वायर इज 361. 20 का स्क्वायर इज 400. जस्ट रिमेंबर दिस. इधर स्क्वायर्स आपको 20 तक याद रखना है, क्यूब्स आपको 1000 तक इज मोर देन सफिशिएंट अभी के लिए. ओके, तो अगर आपको यहाँ पे सपोज से 1 का स्क्वायर रूट निकालने बोला है, तो 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1. वैसे अगर आपको 4 का स्क्वायर रूट निकालने बोला है तो 4 का स्क्वायर रूट रहेगा 2.
9 का स्क्वायर रूट विल बी 3. 3. 16 का स्क्वायर रूट इज गोइंग टू बी 4. 4. 25 का स्क्वायर रूट विल बी 5. 36 का स्क्वायर रूट विल बी 6. 49 का स्क्वायर रूट विल बी 7. 64 का स्क्वायर रूट विल बी 8. 81 का स्क्वायर रूट विल बी 9. 100 का स्क्वायर रूट रहेगा 10. वैसे 121 का स्क्वायर रूट रहने वाला है 11. 144 का स्क्वायर रूट रहेगा क्या, इधर रहने वाला है 12. 169 का स्क्वायर रूट रहेगा 13. 196 का स्क्वायर रूट रहेगा 14. 225 का स्क्वायर रूट रहेगा 15. 256 का स्क्वायर रूट रहेगा 16. 289 का स्क्वायर रूट रहेगा 17. 324 का स्क्वायर रूट रहने वाला है 18. 361 का स्क्वायर रूट रहेगा 19. 400 का स्क्वायर रूट रहेगा. सेम वे वैसे आपको क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट ऑफ 1 रहेगा 1. क्यूब रूट ऑफ 8 रहेगा 2. क्यूब रूट ऑफ 27 रहेगा 3. फोर्थ रूट ऑफ 64 रहेगा 4. ओ सॉरी, नॉट फोर्थ रूट, क्यूब रूट ऑफ 64. क्यूब रूट ऑफ 125 रहेगा 5. क्यूब रूट ऑफ 216 रहेगा 6. क्यूब रूट ऑफ 343 रहेगा 7. क्यूब रूट ऑफ 512 रहेगा 8. क्यूब रूट ऑफ 729 रहेगा 9. एंड क्यूब रूट ऑफ 1000 रहेगा 10. ठीक है, तो इसका जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेके रख देना. तो एक सेकंड रुको, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देना, नहीं तो मीटिंग एंड हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. Can take a screenshot of this. आपको समझ में आ जाएगा. मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक